अभी एक नया कंपनी क्रिएट कर रहा हूँ। इस कंपनी में मेरा मकसद क्या है, आप लोगों को कोटेशन कॉन्फ़िगरेशन कैसे डिज़ाइन करना, इसका और एक एडवांटेज क्या है। कोटेशन के लिए एक वैलिडिटी डेट हो जाता है, वो वैलिडिटी डेट को कैसे मॉडिफिकेशन करना, एक सिखाने का काम है। और दूसरा इसको सिखाते ही और एक काम क्या है, जीएसटी समरी क्या होता है। मैं एक्चुअली बहुत बड़ा एक्सपर्ट तो नहीं हूँ बीसी पे, मैंने ऐसे स्टडी किया है मल्टी रेट और सारा रेट के लिए एक टाइप क्वेरी लिख सकता हूँ और टैक्स इंक्लूसिव के लिए एक टाइप क्वेरी लिख सकता हूँ। ये दो टाइप का क्वेरीज है, ये हम सारा भी जीएसटी समरी बहुत आसानी से बाहर आ जाता है, वो एक सिखाने वाला हूँ। वो एक ही बार मैंने आज यूट्यूब पे डाला, मैंने आज टेलीग्राम पे डाला था कि शॉर्टली आई एम गोइंग टू रिलीज इट, बट द प्रॉब्लम इज एट द एंड ऑफ द डे it has come to 2.6 GB. So at a time posting 2.6 GB is a Herculean task for me because I cannot offer that 2.6 GB at a day because my mobile internet limit is only just 2 GB, and above all I am from a rural area, so here I cannot have that optical fibers net connection for promotion. Okay, now अभी यहाँ आते हैं. So now we are coming here. See, I have come to administration item masters. There I am creating a new discount structure. For before that I have to go to voucher configuration. I am coming at the sales voucher. Here I have to, yes, it's wrong actually. Now I am going to futures and options. At the futures and options, now you are seeing on the screen, instead of simple discount I am selecting compound discount. That is the first process. Afterwards I am coming to the masters. I am coming to the voucher configuration. Here no, I cannot come here, so I made a mistake. It's now currently I am doing voucher numbering QTN /2023-2024 /. So that is that voucher number is to recognize the invoice. Now after that I am enabling discount. So if I enable discount, I have to go back now because I have not configured that additional discount at master's level. So now coming back, discount structure, clicked add. Now I am writing new design, new discount. I am selecting compound discount here. That is the third one that you are seeing on the screen. Number of discounts I am making it to 3. The first one will be percentage depending from the list price, value to be calculated from the list price. Second one will also be percentage, that will be from the price. Third one will also be price. Now I am making the names of it. The first one will be normal discount. So it is the normal discount offered by any dealer to his customer. So that will be percentage. So again that will be scheme discount. Sometimes wholesalers do give scheme, so that is the scheme discount. Spelling mistake may be there. And final will be the cash discount, that is called CD 2% cash discount. Almost it will be 2%. Some firms may give more than that. That depends upon the firms. Now we'll go back to voucher configuration. Definition of the additional discount structure is over now. Now I am coming to the voucher configuration. Here at the voucher configuration I am making that to Y. Now I will type down new discount. I am changing the discount to new discount. Now the new discount selected. Now I have to make it a auto round off. I have to enable the auto round off. Upper will be R plus and minor will be R minus as it is. Now I am going to save it. Up. Now I will come back here. So I will create an item with different tax rates. And why I am doing this is, now I have to create item optional field that I had forgotten to create. Item optional fields. Up. So it's not coming now. So the group will be power sprayer. And HSN code will be 18%.
you're seeing it on the screen. Now I'm going to save it. The unit will be piece. So I'm assuming I have an opening stock of 1 piece with a value of 12,500 for that, and MRP will be 80,500, something like that. It is just a demo only. So on this demo project, now I'm making an invoice. You're seeing now on the screen. It is I will select tax inclusive. I will select tax inclusive. Now I'm pressing F3 and entering my name as a sundry. Yes, it is where I'm doing. No, multi-rate. I'm changing my mind from multi-rate to tax inclusive. I feel tax inclusive will be better. सोच रहा हूँ. I'm feeling better. So the problem is, now I'm coming back to configuration, voucher series configuration. Here I have come back. I have to mention optional fields. That is the validity date, quotation validity date. क्योंकि एक कोटेशन के लिए अगर आज मैंने एक कोटेशन दे दिया, but till the end of the year, financial year, the same quotation date cannot proceed further. क्योंकि market rates they are varying, so in accordance to the variation of the market rates, quotation date cannot be extended. That will select that tax inclusive, and now I'm printing my name, typing my name, sundry debtor, and this is my address. This is my village name, my town name, this is my district name, and Karnataka is my state. I am a native resident of that Tirthahalli. Unregistered. This is my mobile name number. This has WhatsApp. Anybody who does want to talk to me or make correspondence, they can send messages. That is my Geo number. Anybody can message me. Okay. Now, अब मैं validity date को I'm putting it to 32. Okay. इधर जैसा मैंने item master के लिए, as I have done optional fields for the item master, it is not the master description. If it is master description, it would have come there. So it is not master description. Now I am making 7 descriptions. क्योंकि मुझे 5 ही चाहिए. The first one and the second one will be same. क्योंकि मैं इसमें geek नहीं हूँ, क्योंकि technically geek नहीं हूँ. So there's a confusion for me. I don't know how to pivot that entire optional field data while querying. So I'm slightly unable to do that. So for that, instead of 6 fields, if it is 5 fields, I'm taking one more additional. The first one will be I'm leaving blank because I want that to be printed in the invoices or quotations or any document for every item. For printing of that, I need that additional field. So I don't know how to actually handle that. So by my experience, see, there are 7 optional fields. 7 actually, only 6 needed. That I will show in the next video. अब मैं दूसरा वीडियो में इसका बारे में बता देता हूँ. वो तो करेक्ट स्टॉक दिखा दिया. अब सेव तो कर रहा हूँ. अब सेव करते ही I am going to, I can also take account there. I would have taken account, but I have not taken account. I'll go to SQL query. Now this is the shortcut. I am going to create a shortcut for me. या तो नाम होगा 1. सेव कर रहा हूँ. आप कोई नाम आप दे सकते हो. पासवर्ड भी वहाँ एट द टाइम ऑफ क्रिएशन यू कैन गिव इवन पासवर्ड्स टू. select from tran2 where tran2.voucher type is equal to 26 and tran2.rect type is equal to 20. ये भी मैं ले सकता था लेकिन मैंने नहीं लिया है. यहाँ इनवॉइस नहीं डाला है, इसके लिए कुछ नहीं आया है. अब आई एम गोइंग बैक. अब मैं वापस जा रहा हूँ इतना तो लिख के. अब इनवॉइस तो डाल रहा हूँ.
ये मेरा दोस्त का दुकान है। ये दोस्त कैसा है कि ये जो मुझे दे रहा है होलसेल रेट पे दे रहा है। इसके लिए मेरा नाम तो एंट्री किया। अभी वैलिडिटी डेट, यू कैन टेक एनी डेट फॉर, अब मैं 36 डेट बोल के बोल रहा हूँ। अभी F2 दबा देता हूँ। एक पीस का वैल्यू होगा 14,500 ऐसा कुछ मैं सोच रहा हूँ। 16,500 डिस्काउंट नहीं है। नाउ विल गो बैक। यहाँ मुझे वो देता है नॉर्मल। एक्चुअली दूसरा दुकान को डिस्काउंट नहीं देता है, लेकिन मेरे लिए एक 10% तो डिस्काउंट दे दिया। 40,850 तो मेरा रेट आ गया। अब आता हूँ मॉडिफिकेशन पे आता हूँ। दूसरा एक आइटम क्रिएट कर देता हूँ, दूसरा टैक्स परसेंटेज का। क्यों मैं ये सब कर रहा हूँ? क्योंकि आपको मुझे सिखाना है कि जीएसटी समरी, क्योंकि वो फर्स्ट वीडियो जो मैंने बनाया था वो तो 2 आवर्स वीडियो था, लेकिन इट कवर्ड 2.5 आवर वीडियो था। वो 2.6 GB आ गया। 2.6 GB मेरे लिए बहुत महंगा पड़ता है, क्योंकि मेरा गांव से मैं नेट तो स्पीड नहीं है, इसके लिए अपलोड नहीं कर सकता था। इसके लिए वो आइडिया तो छोड़ दिया। बाद में आइडिया कर दिया स्क्रैप करके, पीस पर करके बना के देने के लिए। अब इसका तो वैल्यू होगा 1,800 रुपीज़। वो कोरियन में एक स्प्रेयर पाइप है। वो स्प्रेयर पाइप के लिए डिस्काउंट नहीं रहता है, उनका 10% के अंदर मार्जिन के लिए वो लोग स्प्रेयर पाइप पे डिस्काउंट रखा नहीं है। अब फेस मेश टाइप शील्ड, वो वीड टाइप का वीड आके आपका आंखों में पड़ते हैं, वो अवॉइड करने के लिए एक छोटा सा मेश टाइप रहता है। उसको करीब 400-500 कुछ है। अब मैं इसको लेता हूँ 28% डेमो दिखाने के लिए, सेव कर देता हूँ। बस F2 दबा देता हूँ। एक पीस अब आया, सेव किया। सेव करने के बाद अब जाते हैं हम, ये ऑलरेडी मैंने कंस्ट्रक्शन करके रख चुका है। ये बिजी स्टैंडर्ड वर्जन है, बिजी स्टैंडर्ड वर्जन का ही है रिपोर्ट। अब मैं जाता हूँ, नया ऐड कर देता हूँ, नया फॉर्मेट, न्यू डिज़ाइन पे नंबर ऑफ हेडर सेव किया, डिफ़ॉल्ट को सेव किया, फुटर पे डिफ़ॉल्ट को, बॉडी पे विड्थ परफेक्शन करने के लिए BLH वो 80 पीस लेता हूँ, क्योंकि मैंने CPI12 या कंडेंसर नहीं लिया, क्योंकि वो 10 इंच प्रिंट करने के लिए 80 कैरेक्टर्स बस हो जाता है। अब BLH L बॉक्स हॉरिजॉन्टल, सो इतना कर दिया तो अब ये एक परफेक्ट 80 कॉलम के लिए आके बैठ जाता है। फुटर पे तो ऑलरेडी दबा के डिफ़ॉल्ट ही मैं रख देता हूँ। अब डिफ़ॉल्ट तो रख चुका है। अब प्रिंट प्रीव्यू पे देखता हूँ मैं न्यू डिज़ाइन पे देखने पे अब देखिए, अब इतना तो आ गया हेडर आने के बाद अब मेरा सवाल क्या है, मुझे भी कोटेशन डेट तो ले, वो तो BLH R लिखा है ना, L लिखा है ना, इसके लिए ऐसा आता है। वैलिडिटी डेज 36। अब 36 डेज, ये इस डेट से 36 डेज तक ये कोटेशन तो वैलिड है बोल के बोला है मैं। अब आता हूँ, वो जो नहीं चाहिए मुझे उस पूरा डिलीट कर देता हूँ। डिलीट किया, वहाँ तो बोल्डान रख चुका है, बोल्डान भी काट दिया। अब कंडेंस ऑफ तो लिखना पड़ेगा। ब्लैंक स्पेस 136 दे रहा हूँ।
अब वहां लिख रहा हूं कंडेंस ऑफ। अब लिख रहा हूं कंडेंस ऑफ। जैसे कि मैंने कहा था आइटम डिस्क्रिप्शन में सारा कंपनी का देता हूं, वो ग्रुप समरी लिखने के बाद देता हूं। अब इसमें तो नहीं देता हूं, इस इनवॉइस पे नहीं देता हूं। अब देखिए इतना तो आ गया। इतना आने के बाद अब मेरा काम शुरू हो जाता है एसक्यूएल क्वेरी, सीक्वल क्वेरी लिखने के लिए। बाहर जाता हूं, डिस्प्ले पे आता हूं, क्रिएट कर देता हूं, कंट्रोल शिफ्ट F2। ये मेरा फेवरेट है। आप कोई शॉर्टकट की आप दे सकते हो या फेवरेट पे आप एक लेके जाके ऐड भी कर सकते हो। इतना तो अब आ रहा है, इतना तो दिसेगा, इतना तो आएगा ही। ठीक है, अब तो ये आ रहा है, अब तो आ रहा है। ये सब आ रहा है, वो सब जीएसटी का आइटम्स, लेकिन वो चार्जेबल नहीं होता है। डिस्प्ले में दिखता है, वहाँ एक लॉजिकल कंडीशन है, वो फॉल्स बोल के लिख के रहता है। वो अभी मैं एक्सप्लेन आपको नहीं करता हूँ, करने का टाइम में करता हूँ। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ट्रान 1, फ्रॉम ट्रान 1 व्हिच अदर इन्फो सेव करता हूँ और इसको रन करता हूँ। वो तो 36 आ चुका है। वो एक टेबल का नाम वोचर अदर इन्फो, वो एक टेबल का नाम है। अभी उस टेबल को मैं ट्रान 1 टेबल से ज्वाइन कर देता हूँ। ये इनर ज्वाइन करना आउटर ज्वाइन करना वो मुझे पता नहीं रहता है। मैं फर्स्ट इनर ज्वाइन बोल के लिख देता हूँ, उसके बाद मैं मेरा रिजल्ट देखता हूँ। रिजल्ट देखने के बाद कॉमन पैरामीटर्स क्या है वो देखता हूँ। उसके बाद फिल्टर कंडीशंस क्या क्या लगाना वो पड़ता है, उसको भी अडॉप्ट कर देता हूँ। ओके, अब मैं लिखता हूँ सेलेक्ट वो 5 लिख चुका है मिस्टेक से, अभी डिलीट करता हूँ। सेलेक्ट tran1.date, मेरा तो बैक एंड एक्सेस है। tran1.date, tran1.date plus tran1.date कॉमा, तो सेमी एक कॉमा तो डालना है, कॉमा वोचर अदर इन्फो v2.of1 from voucher other info as v2, other info as v2। अब तीसरा 4th लाइन में लिखता हूँ इनर एक स्पेस इनर ज्वाइन tran1 on tran1 dot voucher code is equal to v2 dot voucher code, where tran1 dot voucher type is equal to v2 dot voucher code, where tran1 dot voucher type is equal to voucher code, where tran1 dot voucher type is equal to 26। इस क्वेरी का मतलब क्या है? tran1 फील्ड से डेट को ले, v2 फील्ड से वोचर अदर इन्फो का थोड़ा नाम मिस्टेक हो चुका है, वो THER होना था, वो TER होके हो चुका है। अब सेव तो करता हूँ, उतना ही कॉपी कर लिया। अब पेस्ट किया, हो गया, एग्जीक्यूट किया, ठीक हो गया। अब तो आ गया। अब क्या होता है, वो तो टेक्स्ट में रहता है। अब मैं उसको
टाइप कन्वर्शन ऑफ विजुअल बेसिक का यूज करके वैल ऑफ बोल के वो ऑप्शनल फील्ड को बुला देता हूँ। वैल ऑफ का मतलब जो भी टेक्स्ट रहता है वो न्यूमेरिकल में बदल जाता है। स्ट्रिंग कैन होल्ड इन टेक्स्ट एंड आल्सो एज वेल एज नंबर। सो इसके लिए मैं क्या कर देता हूँ, ऑप्शनल फील्ड्स आर कंसिडर्ड एज स्ट्रिंग्स। So whatever the value that is being placed at the optional fields, it will be stored on the hard disk as strings in the memory location, as various memory locations as strings. So मैं क्या कर देता हूँ, वैल को बुला दिया। अब मेरा तो बैक एंड पे एक्सेस है। अगर किसी के पास एसक्यूएल सर्वर है, उन लोगों को डेट ऐड फंक्शन यूज करना पड़ेगा। मैं यहाँ तो डेट ऐड फंक्शन यूज नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मेरा तो एरर आ जाता है डेट ऐड फंक्शन यूज किया तो। आप लोगों को और एक बार दिखा देता हूँ, मैं डेट ऐड मंथ ऐड फंक्शंस पूरा दिखा देता हूँ। जिसको एसक्यूएल पता है उसको पता रहता है वो डेट ऐड मंथ ऐड फंक्शन टाइम इंटरवल दे के ऐड कर दिया तो ऐड हो जाता है। लेकिन मुझे ऐसा पॉसिबल नहीं है, इसके लिए मैंने एक्सेस बैकएंड पे सिर्फ वही फॉर्मेट में बुला दिया। अब हेडर पे आके एक वहां लिख देता हूँ, उसको हटा देता हूँ। एक्चुअली वो फील्ड मुझे होना था लेकिन मैंने हटा दिया। अब टेक्स्ट बोल के बुला सकता हूँ मैं, नेम होगा 1001 और उसको रख देता हूँ 30। सेव किया। अब एक्चुअली देखो वो डेट तो वहाँ आ चुका है। तो टाइप कन्वर्शन देखिए 36 डेट तो ऑटोमेटिकली ऐड होके आ चुका है। अब मुझे कोटेशन का डेट भी मेंशन करना था, इसके लिए दोबारा मुझे और एक लाइन में नीचे जाना पड़ेगा। वो वहां का नहीं था, वो आना था नीचे। वहां आना तो ऑप्शनल फील्ड 1। अब उसको 18 करता हूं फील्ड के लिए। अब देख रहा हूं फील्ड पे अल्टर तो कर रहा हूं। उससे वैलिडिटी डेट करता हूं। कोटेशन वैलिडिटी अब तो देख रहा हूं, प्रीव्यू पे देख रहा हूं ये बाहर जा रहा है। अब उसको अब प्रिंट प्रीव्यू में देख रहा हूं। अब तो आ गया। अब मैं फॉर्मेट को, इनवॉइस का फॉर्मेट को, डेट कोटेशन वैलिडिटी फॉर्मेट को चेंज कर रहा हूं। लेकिन जिसको एसक्यूएल सर्वर बैकएंड पे है, इनको ऐसा आप नहीं लिख सकते हो। आपके लिए परसेंटेज कैपिटल डी, एक स्पेस परसेंटेज कैपिटल एम, परसेंटेज कैपिटल वाई लिखना पड़ेगा।
अब तो आ गया, वैलिडिटी डेट तो आ गया। अब वैलिडिटी डेट चेंज कर देता हूँ 30। समझो कि मैं अब वैलिडिटी डेट तो चेंज किया। ऑटोमेटिकली वो डेट भी चेंज हो जाता है। अब डेट चेंज करके 77 डेट्स देता हूं। देखिए 17 जून 2023 सैटरडे, ये तो आ गया। अब ये तो आ गया। अब डेट्स लिखने का कोशिश कर रहा हूं, लेकिन वो अच्छा नहीं होगा। अब तो आ गया। बस इसका अगला पोर्शन नेक्स्ट।